We're going to issue a dividend to our middle income people and lower income people of about $2,000. और ऐसा ही कुछ आपको पता है हमारी इंडिया की पॉलिटिक्स है उसमें भी यही होता है. Without tariffs, this country would be in such trouble, as they were for many years. That's why we owe $38 trillion. वेलकम बैक कबड्डी. सत श्री अकाल. आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही तगड़ा दाव खेला. $2,000 यूएस सिटीजन को मिलेंगे एज अ डिविडेंड फ्रॉम टैरिफ पेमेंट्स, और जो बच जाएगा उससे हम यूएस नेशनल डेट जो करीब $38 ट्रिलियन है उसको कम करेंगे. तो ये ऐसी स्टेटमेंट आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी जिस वक्त इंडिया से टैरिफ कम करने की बात चल रही थी. How close are you to a deal on the trade deal with India? Are you willing to consider lowering the current tariff rate? Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. What kind of level are we talking about here? I mean, at some point, we're going to be bringing them down. Without tariffs, this country would be in such trouble, as they were for many years. That's why we owe $38 trillion. And one of the things we're going to do, we're going to issue a dividend to our middle income people and lower income people of about $2,000. And we're going to use the remaining tariffs to lower our debt. We're going to be lowering our debt, which is a national security thing. और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए टैरिफ बहुत ज़रूरी हैं. इससे जो है हमारा जो डेट है वो कम होगा और मैं यूएस सिटीजन को डिविडेंड पे करूँगा $2,000. और ये हवा जो थी ना, ये न्यूज़ जो थी वो ऐसी फैली है अमेरिका के अंदर कि अमेरिकन लोगों को लग रहा है कि हमें $2,000 मिलने ही वाला है, कल ही मिलेगा. अब हम चलते हैं थोड़ा सा डीपली कि ऐसा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा है. दोस्तों, पहली बात, अभी जो इलेक्शन होके हटी और जो डेमोक्रेट का पलड़ा भारी हुआ उसको देखकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफोर्डेबिलिटी की बात की कि यार अफोर्डेबिलिटी की वजह से ही डेमोक्रेट जीते हैं. तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर लोगों को दिक्कत है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको $2,000 दे दूंगा टैरिफ रेवेन्यू से. लेकिन अब दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ पॉलिसी, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी है, उसके अगेंस्ट केस चल रहा है कि क्या ये पॉलिसी लीगल है कि इलीगल है. क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास ये पावर है कि बाकी देशों के साथ इस तरह से टैरिफ वॉर छेड़ी जाए. अब ये केस बेसिकली कौन कर रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? डेमोक्रेट्स. अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या तीर खेला है कि एक तरफ तो मैं लोगों को कहता हूं कि मैं तुम्हें $2,000 दे रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं ये भी लोगों को बताता हूं कि देखो, डेमोक्रेट्स नहीं चाहते मेरी टैरिफ पॉलिसी को कंटिन्यू रखना. डेमोक्रेट्स नहीं चाहते कि हम जो है आप लोगों को $2,000 दे पाए जब हमें टैरिफ से पैसा आएगा. बहुत ही अच्छा दाव. अब आप खुद देख लो, सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ जाएगा कि यार अब क्या करें. We're doing a lot of good work, and the numbers were reported so incorrectly. The real numbers are trillions of dollars have been taken in or gotten in terms of investment from the tariffs. And so if that were ever reversed, it would be a disaster. Frankly, it would be a national security problem for our country. And nobody thinks it's going to be reversed. I think we had a very good court case. As you know, it's before the Supreme Court right now. But if that were ever reversed, people are saying, oh, it's $1 billion. Some people said, oh, it's $2 billion. Well, that obviously we can handle very easily. But this is trillions of dollars we're talking about in terms of the tariff income and all the investment income that's come into our country. We have more than, I would say right now, more than $18 trillion. The biggest number ever is a tiny fraction of that for any country. China, the United States, the biggest number ever. If you look at the past administration, Biden, he did less than $1 trillion in 4 years. We're over $18 trillion. By the time my first year ends, we're going to have over $20 trillion of investment coming into the United States. It's unheard of. We have AI factories. We're leading China by a lot. We have cars and car plants coming in by more than we've ever had built before. All of that would go away if we lose the tariff case. So all of it would go away. So they're not giving the right numbers. It would be an economic disaster. It would be a national security disaster if we lost the case in the Supreme Court. इतनी अच्छी डेमोक्रेट्स ने घेर डाल लिया था. लेकिन मैं कहता हूँ रिपब्लिकन पार्टी में अगर कोई स्मार्ट बंदा है और अगर इस बंदे को हटा दिया जाए तो रिपब्लिकन पार्टी के पास कुछ नहीं है. वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी. बहुत ही सही खेलते हैं गेम. इनको पता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड में कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, और इस वक्त डेमोक्रेट्स को फंसा दिया.
Yes. This is an idea that you've been talking about for months. This is going to directly and Yeah. positively impact millions of Americans. Why was this important for you to do, and when can Americans expect that? So I've been rebate? talking about it for a long time, the dividend to people that, have suffered under the Biden administration. So Biden had the highest inflation in history, and we now are at a very low point. We're going to be hitting 1.5% pretty soon. So we're at a low point, and he was a high point. We did that. Food prices are way down. It's all coming down. And the biggest decrease, of course, is energy. And, as goes energy, goes everything else. Because when energy comes down, the oil, the electric, I think you're going to see $2 gasoline or something very close to that. In fact, we're already in the twos. But I think you're going to be seeing very soon $2 gasoline. That's like the equivalent of a massive tax cut. But in addition to that, the great big beautiful bill gives you a very, very big tax cut. And then you have no tax on tips, no tax on Social Security, and no tax on overtime for the middle income and for even, frankly, anybody. But you have no tax, and the no tax on tips has turned out to be a tremendous thing. But when you think no tax on tips, no tax on overtime, and no tax on Social Security for our seniors, it's the great big beautiful bill, which has been mischaracterized, but now people they don't want to talk about it because it's so good, the enemy, because it's so good for everybody. It's the greatest piece of legislation ever passed in the history of our country in terms of size. क्योंकि एक तरफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि हम जो मिडिल क्लास इनकम वाले लोग हैं, जो लो इनकम वाले लोग हैं, उनको हम पैसा देंगे टैरिफ रेवेन्यू से, जो में टैरिफ से पैसा आएगा उनको जाएगा, और बाकी जो डेट होगा उसको कम करेंगे। लेकिन सोचो अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी यही टैरिफ पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो $2000 लोगों को देना तो छोड़ दो, $1 ट्रिलियन वापस देना पड़ेगा कंट्रीज को, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो आप खुद सोचो, इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी उन्होंने डेमोक्रेट्स को घेर डाल दिया कि यार देखो, ये लोग नहीं चाहते मेरी टैरिफ पॉलिसी को ये कंटिन्यू रहे, ये लोग नहीं चाहते कि हम आपको $2000 दे सकें, मैं अपनी जनता की मदद करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ रिपब्लिकन पार्टी में सबसे स्मार्ट बंदा कोई है तो वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अगर ये हट जाए ना तो मैं कहता हूँ रिपब्लिकन पार्टी की नहीं चलती। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि भाई इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सिचुएशन इनको पता होता है कि यार ये सिचुएशन हाथ से जा रही है, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल हाथ में ले आओ। लोगों को खुश कर दिया, जनता को खुश कर दिया, यार अरे $2000 दूंगा, टैरिफ पेमेंट से दूंगा। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में उसी टैरिफ पॉलिसी के अगेंस्ट केस चल रहा है। अगर उन्होंने डिसीजन दे दिया, मैं कहता हूँ रिपब्लिकन पार्टी की तो पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। पर देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा। और दूसरी चीज़, जब भी इस तरह के चेक्स, इस तरह के पेमेंट्स जनता को दी जाती है दोस्तों, प्रेसिडेंट नहीं अपने हाथों से देते, नहीं, वो कांग्रेस में लॉ मेकर्स जो हैं वो लेजिस्लेशन पास करेंगे तो लोगों को चेक मिलेंगे। इधर पहले गवर्नमेंट शटडाउन हुई पड़ी है, गवर्नमेंट ओपन नहीं हो पा रही। तो ये वाले जो चेक्स वाली बात है, ये तो बात की बातें हैं कि अगर पहली चीज़ है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया इनकी टैरिफ पॉलिसी। दूसरा, कांग्रेस अगर मान गई कि हाँ ठीक है हम जनता को $2000 देना चाहते हैं, उसके ऊपर लेजिस्लेशन लॉ बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाके जनता को पैसा मिलेगा। तो इस वक्त जनता में बहुत खुशी है। और ऐसा ही कुछ आपको पता है, हमारी इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी यही होता है। पहले बहुत कुछ बोला जाता है और जब सब कुछ बन जाता है उसके बाद पता नहीं लगता यार वो बातें कहाँ गई। ऐसा ही अब अमेरिका में देखने को मिल रहा है। अब क्या करें, रिपब्लिकन पार्टी को अपने आप को भी तो बचाना है, डेमोक्रेट भारी पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं डेमोक्रेसी में ना लोगों को अपनी बात मनवाना आती है। अभी आप देख सकते हो हेल्थ केयर जो क्राइसिस है वो बना हुआ है और गवर्नमेंट शटडाउन है। लोग अपनी हेल्थ केयर की मांगे रख रहे हैं और अगर मांगे पूरी नहीं हो रही तो लोग डेमोक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं। उसी तरह जिन लोगों को भी टैरिफ से अगर नुकसान हो रहा है, जिन बिजनेसेस को, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस नुकसान को ही एक्चुअली में कवर करने के लिए कहा है कि भाई ठीक है आपको मैं $2000 दे देता हूँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लो इनकम लोग हैं, अगर आपको टैरिफ से फ़र्क पड़ रहा है। पर वैसे वो कह रहे हैं कि टैरिफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमेरिकन इकोनॉमी में, क्योंकि अभी तक अमेरिका को लूटा गया है, ऐसा उनका कहना है कि जिस तरह से हमारे जो ऑटोमोबाइल हैं, हमारे जो कार्स हैं,
वो दूसरी देशों में नहीं बिकती, लेकिन बाकी देशों की कारें इस देश में बिकती है। ये बात सही भी है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि यार टैरिफ पॉलिसी जो है बिल्कुल ही गलत है, या हम बोले बिल्कुल ही सही है। एक बोलते हैं ना कि बड़ा ही सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ होते हैं। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है टैरिफ पॉलिसी को लेकर। बाकी जो भी होगा दोस्तों अच्छा ही होगा। अगर $2000 जनता को मिल रहे हैं भाई, मिलने चाहिए, दो। मैं तो कहता हूँ जल्दी करो जनता को दो। और अगर डेमोक्रेट्स कह रही है कि जनता को हेल्थ केयर भी मिलना चाहिए तो वो भी दो भाई, जल्दी करो। तो बहुत मज़ा आ रहा है अमेरिका की पॉलिटिक्स को कवर करने में और सीखने में। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। चको फटे।